Yes, sir. Yes, sir. Good morning to all. This is the fourth consecutive day of webinar on martial arts. And today, I am very happy to introduce our guest of honor and speaker, Dr. Rajiv Chaudhary. Dr. Rajiv Chaudhary is Professor of Physical Education and Dean of Student Welfare, Pandit Ravisankar Shukla University, Chhattisgarh. He got MPE, MPhil and PhD degrees from the LNIC Model, department from UGC NET and the DRM certificate. He was awarded teaching from in yoga and psychotherapy, yoga and meditation, and yoga and naturopathy. He has started his career as assistant professor in LNIC Model College. He has well-known physical education across the country and even outside India also. On behalf of Dr. Vijay College and Department of Physical Education, I extend him warm welcome to you, sir. Let's start on martial arts and the Mission Shakti program of UP Higher Education Department. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now over to you, sir. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yes. Okay, sir. Yes, sir. My senior, respected Dr. Valsraj sir, my friend Dr. Baju, other faculty members, participants, friends, ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers, especially to Valsraj sir and Baju ji for inviting me to conduct this practical session in front of you through online mode. I am feeling great pleasure as I got this opportunity. I am instructed by the organizers to speak in both the languages. I am instructed by Dr. Baju to speak in both the languages. So I will speak in both the languages, English as well as Hindi. बात करेंगे सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की। आत्मरक्षा के लिए हम विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हैं। We use different practices for the defense purposes. We may use judo techniques, we may use taekwondo techniques, but I will concentrate on the judo techniques, and these techniques are very effective in nature. But we should keep in our mind, हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि we have to follow some principles, और all these techniques are based on some principles. ये जितनी भी तकनीक है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, उन सिद्धांतों का ज्ञान हमें होना चाहिए। The first principle is maximum efficiency with minimum efforts. कम से कम लागत में अधिक से अधिक अर्जित करना। It means by applying our 10 to 20% strength, we can see the effect of these types of techniques. इस प्रकार की जितनी भी टेक्निक है उन सब का प्रभाव हम देख सकते हैं केवल 10-20% अपनी ताकत का उपयोग करके। I will demonstrate practically in front of you. We know that it is very difficult to conduct practical sessions online, especially from the field of sports and physical education, but I am trying my level best to demonstrate some self-defense techniques in front of you. After the brief description of the first principle, that is maximum efficiency with minimum efforts, second principle that should be followed by a practitioner, that is mutual welfare, सामाजिक हित। आमतौर पर देखा जाता है कोई भी व्यक्ति विशेष मार्शल आर्ट टेक्निक्स में या जितनी भी एक खतरनाक श्रेणी की टेक्निक्स है उसमें पारंगत हो जाता है, वो एक संभावना रहती है कि वो उसका मिसयूज करे, दुरुपयोग करे। लेकिन इस प्रकार की टेक्निक्स केवल आत्मरक्षा के या सामाजिक हित के लिए होती है। इस सिद्धांत को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ judo, since all techniques are based on these principles, or all these techniques are practiced by obeying these principles. Third principle is, तीसरा सिद्धांत है gentleness, control, hardness. We should not be aggressive,
ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक, यदि कोई ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है तो हमें बहुत अधिक एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, शांत, क्योंकि मैं आपके सामने जो टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करूंगा उसमें एग्रेशन की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है मैकेनिकल एडवांटेज की। इट मींस वी हैव टू इंक्रीज पावर आर एंड वी हैव टू डिक्रीज रेजिस्टेंस आर। इस बायो मैकेनिकल प्रिंसिपल की मैं विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा उद्देश्य होगा मैकेनिकल एडवांटेज लेना। कैसे? शुरू करते हैं। तो टेक्निक्स की चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जूडो की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जूडो के बारे में हम जानें। जूडो एक ऐसा खेल है जो एक खेल के रूप में भी अपनाया जाता है और आत्मरक्षा के रूप में भी अपनाया जाता है। लेकिन खेल में किन टेक्निक्स का सम्मिलन हो सकता है? आत्मरक्षा के लिए तो किसी भी टेक्निक का हम उपयोग कर सकते हैं। तो जितनी भी जूडो टेक्निक्स है, ऑल जूडो टेक्निक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। जितनी भी जूडो के क्षेत्र में टेक्निक है उनको 3 विभिन्न भागों में वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट वन इज नागेवाजा। इस शब्द पर मत जाइए, नागेवाजा जैपनीज टर्म है, तो इसका अर्थ है थ्रोइंग टेक्निक इन विच वन इंडिविजुअल थ्रोज अनदर इंडिविजुअल, जिसको कहते हैं लेमैन की भाषा में फेंकने वाली तकनीक, जिसमें एक व्यक्ति विशेष दूसरे को फेंकता है। आपको लगता होगा कि फेंकना कैसे संभव है, लेकिन यस, वी कैन थ्रो by using different techniques, by applying our 10-20% strength. Second category is grappling techniques. In that, one practitioner, one individual grapple another individual. Examples are choking techniques, locking techniques. We lock different joints of the body. We can lock elbow joint, we can lock wrist joint. I will demonstrate in front of you. Third one is holding techniques. Holding techniques means when an individual comes under your 100% control, यदि कोई व्यक्ति विशेष आपके 100% नियंत्रण में आ जाता है, उसको कहा जाता है होल्डिंग टेक्निक्स। होल्ड में है आपके लिए। तो 2 श्रेणियों की बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात, the most important part is the techniques which comes under these 2 categories, that is throwing techniques and grappling techniques. We can use these techniques during sport, during competition. लेकिन जो तीसरा वर्ग है, थर्ड कैटेगरी, आत्मेवाजा। आत्मेवाजा मीन्स सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड इन जूडो एज ए स्पोर्ट। जिस जूडो को हम खेल के रूप में अपनाते हैं, प्रतियोगिता के लिए अपनाते हैं, उसमें तीसरे वर्ग की तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते, खतरनाक है, उन्हीं की बात आज करेंगे। These techniques are used only for the purpose of self defense. इन तकनीकों का उपयोग हम करते हैं केवल आत्मरक्षा के लिए। बेसिक से शुरू करते हैं। Now my main part, my main presentation starts. अब मेरा मुख्य प्रस्तुतिकरण आरंभ होता है। अभी तक तो एक आधार बनाया गया है। मैं पार्टनर के साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विभिन्न टेक्निक्स को। तो बेसिक से शुरू करते हैं। और जो जिस मिशन के तहत यह आयोजन हो रहा है, इससे संबंधित कुछ मेरे सेशंस पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि प्रत्येक सेशन में कुछ नया शामिल किया जाए, कुछ नई टेक्निक्स शामिल की जाए। आज भी पिछले सेशंस की तुलना में आज भी कुछ 2-3 नई टेक्निक्स की चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस लेवल। मैं एक बेस लेवल से शुरू करूंगा। बेस लेवल से शुरू करते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी? जिन टेक्निक्स का मैं चयन करके लाया हूं आप सबके सामने प्रस्तुतिकरण के लिए, ये सब क्योंकि यह आयोजन स्पेशली छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है कि छात्राएं अपनी आत्मरक्षा कैसे करें when any attacker attacks on them। यदि कोई उन पर आक्रमण करता है किसी भी रूप में, तो हम सब जानते हैं कि आक्रमण कैसे हो सकता है। किसी भी छात्रा की, किसी भी बच्ची की कोई कलाई पकड़ सकता है, गर्दन पकड़ सकता है, बाल पकड़ सकता है, हाथ पकड़ सकता है, कमर पकड़ सकता है। इट मीन्स, इसका अर्थ हुआ कि किसी भी स्थान पर पकड़ा जाए, उस स्थान से अपने बचाव की और बचाव के साथ साथ आक्रमण करने की भी टेक्निक्स हमारे पास उपलब्ध है, जो कि आत्मेवाजा, जो कि तीसरी कैटेगरी जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत आती है। तो
एक एक करके बातें करता हूँ आप सबके सामने पार्टनर के साथ डेमोंस्ट्रेशन करके। और एक सबसे आग्रह और है, यदि आपको डेमोंस्ट्रेशन की रिपीट करने की आवश्यकता है तो यू में रिक्वेस्ट मी अगेन एंड अगेन। यदि जो मैं डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूँ यदि वो आप तक ठीक प्रकार से पहुंच पा रहे हैं वही मेरा सेटिस्फेक्शन होगा, अदरवाइज दैट विल बी ए फॉर्मेलिटी ओनली, नहीं तो वह केवल एक फॉर्मेलिटी होगी। शुरू करते हैं पहले से। बैजू जी इज इट विजिबल? बैजू जी विजिबल है ना? ओके, शुरू करते हैं पहले टेक्निक से। इफ एनी कॉन्टेस्टेंट, हेलो, शुरू करते हैं। बैजू जी कोई एडवाइस है क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। यदि इफ एनी अटैकर होल्ड्स योर रिस्ट, यदि कोई भी आक्रमणकारी आक्रमणकर्ता या यदि आपकी कलाई को पकड़ता है, उस दशा में आप कैसे बचाव करेंगे? यहां भी विभिन्न दशाएं उत्पन्न होती हैं। आपकी कलाई दो, हेलो, हाँ बैजू जी बताइए। यस बैजू जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो, हाँ बैजू जी, सर म्यूट हो गए। अभी इज इट ओके? आप मुझे बीच में टोक दीजिएगा यदि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो। टेक्निक नंबर 1, यदि कोई प्रतियोगी अटैकर आक्रमणकर्ता आपकी कलाई को होल्ड करता है एक हाथ से, लेकिन एक हाथ से भी दो प्रकार से होल्ड किया जा सकता है, बाय द हेल्प ऑफ द सेम साइड ऑफ हैंड, कि उसी तरफ के हाथ से पकड़े, या इफ ही होल्ड्स बाय यूजिंग अपोजिट हैंड। तो पहले बात करते हैं, यदि कोई भी आक्रमणकर्ता सेम साइड हैंड से आपकी कलाई को होल्ड करता है तो हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू एस्केप आवरसेल्फ, पहले तो अपना बचाव कैसे करें, जब हमारा बचाव हो जाए तो हम आक्रमण कैसे करें, दोनों बातों की बातें करेंगे। सबसे पहले हाउ टू एस्केप आवरसेल्फ। तो अब जैसे कि मेरे सामने एक, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि होल्ड टाइटली होल्ड कीजिए और मेरे हाथ को मत छोड़िए, जितनी ताकत है ताकत लगाइए। अगर मैं सामान्य विधि से अपने हाथ को छुड़वाने का प्रयास करूंगा, आई एम अनेबल टू, काफी ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं सिद्धांत में बता चुका हूं, these techniques are based on maximum efficiency with minimum efforts। उस दशा में देखिए, अब फर्स्ट आई विल डेमोंस्ट्रेट द फुल स्किल, पहले पूरी स्किल को डेमोंस्ट्रेट करूंगा, फिर बाय पार्ट में बात करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद कंबाइंड वे में देखेंगे उसको। शुरू में फुल डेमोंस्ट्रेशन देखिए और मेरे एक्शन से अंदाजा लगाइए, यू में जज कि हाउ मच स्ट्रेंथ आई एम अप्लाइंग, कि मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं। सी, मुझे ताकत, अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, मुझे बहुत अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। दोनों में फर्क देख लीजिए। अभी मैं बिना टेक्निक के छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं और अब टेक्निक के साथ कैसे घटित हुआ, हाउ दिस हैपेंड, कैसे। आपको कुछ नहीं करना है। यदि आक्रमणकर्ता आपकी कलाई को सेम साइड की तरफ के हैंड से पकड़ता है, हाथ से पकड़ता है, उस दशा में आपको 180 डिग्री टर्न करना है, पूरे ट्रंक की ताकत लगेगी जो कि आपके सी टर्न करना है, और जहां हाथ जा रहा है जाने दीजिए और हल्का सा फ्रंट अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर दीजिए। सी, अब मैं स्लो मोशन में देखिएगा, मैं अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग हिम, मैं दोबारा इनको आग्रह कर रहा हूं, होल्ड टाइटली, जितनी ताकत में लगा दीजिए, और मैं आप सबके सामने स्लो मोशन में प्रदर्शित कर रहा हूं। स्लो,
सी, ये कितनी भी ताकत क्यों ना हो, स्लो मोशन में देखिए। और इसी को हल्का सा फास्ट देख लीजिए। ठीक, आई डेमोन्स्ट्रेटेड वन स्किल, जिसमें कि सेम साइड के हाथ को पकड़ा तो छुड़वाना कैसे, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने आप को छुड़वाना नहीं है, छात्रा का उद्देश्य होगा उसको सबक भी सिखाना। एस्केप करने के बाद अटैक भी करना है, तो इसके बाद अटैक कैसे होगा? सी, इन द सेकंड टेक्निक, दूसरी टेक्निक में हम इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन किसके साथ करते हैं? अटैक के साथ। अब इसको देखिए, अब बात कर रहे हैं दूसरी टेक्निक की, जो कि बचाव नहीं है, बचाव के साथ साथ अटैक भी है। पहले बचाव की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने ये बात की कि हाउ टू एस्केप योरसेल्फ। अब इसको अटैकिंग एक्शन में बदलते हैं। एस्केप कीजिए, हाथ की रेंज ही बढ़ाएंगे, यानी हाथ को पुल कीजिए अपवर्ड एंड फ्रंट डायरेक्शन में एंड हिट नोज को हिट कीजिए। हम जानते हैं हमारा नाक बहुत ही संवेदनशील भाग है शरीर का, यदि हिट करते हैं तो आप सोचते हैं कि व्यक्ति बचाओ, पहले में दोनों में ही सेम साइड के हाथ से। अब बात करते हैं अगली, प्रोसीड टू द थर्ड टेक्निक। अब तीसरी टेक्निक की बात करते हैं। तीसरी टेक्निक में क्या है? इफ द अटैकर होल्ड्स योर रिस्ट बाय यूजिंग हिज बोथ द हैंड्स, यदि अटैकर आपकी कलाई को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है तो देखिएगा, सामान्य विधि से बाय यूजिंग द नॉर्मल मेथड आई एम ट्राइंग टू एस्केप माई सेल्फ, मैं अपने हाथ को, कलाई को छुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं। ताकत बहुत छूट सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन उसी सिद्धांत पर जाइए जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ। यहां लागत जो शब्द है यह हो रहा है हमारी ताकत से, कि कम से कम ताकत से अधिकतम लाभ। तो कैसे छुड़वाना है? पहले तो फास्ट एक्शन में देख लीजिए, फिर इसको बाय पार्ट देखेंगे कि पहले ये एक्शन करना है, फिर ये करना है। वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अब देखिए, अब मैं इनसे कह रहा हूं अप्लाई योर फुल स्ट्रेंथ, आप अपनी अधिकतम ताकत लगाइए जितनी ताकत आप में, और मैं हाथ को छुड़वाता हूं और मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे मूवमेंट से आप एज्यूम करिए, जज कीजिए, अंदाजा लगाइए कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। सी, मैं दोबारा आपके सामने, आपको लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे, यह वास्तविकता है। फिर मैं कह रहा हूं कि जितनी ताकत हो लगा दीजिए, और मैं हाथ को छुड़वा रहा हूं। कैसे हुआ? और सामान्य विधि से देखिए, सी स्टेप वाइज कैसे करना है, ध्यान दीजिए, केवल एक्शन को देखिए। हमें क्या करना है? अपोनेंट के अटैक करके दोनों हाथों के बीच से आपने कलाई को इंसर्ट करना है एंड वी हैव टू होल्ड आवर ऑन फोर फिंगर्स, अपनी फिंगर टिप्स को होल्ड करना है और अपने फोर आर्म से अपोनेंट की रिस्ट को प्रेस करते हुए अपवर्ड बैकवर्ड, अपने अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल कर देना। मैं कह रहा हूं ताकत, जितनी ताकत लगाइए, स्लो मोशन में देख, जितनी ताकत लगाइए। सी, कितनी भी ताकत हो, और वैसे बड़ा मुश्किल है। सो ठीक बात किया। अभी तक हम 3 टेक्निक्स की चर्चा कर चुके हैं। प्रोसीड टू फोर्थ। पहली टेक्निक में बात की थी, यदि सेम साइड के हाथ से आपके कलाई को पकड़ा गया तो बात हो चुकी है। सेम साइड के हाथ से आपकी कलाई को पकड़ा कर अटैक कैसे करना है, बात हो चुकी है। दोनों हाथों से आपकी कलाई को पकड़ा गया तो छुड़वाना कैसे, हाउ टू एस्केप योरसेल्फ, तो उसकी बात हो चुकी है। अब अगली चौथी टेक्निक में बात करेंगे हाउ टू अटैक, अटैक कैसे करना है। उसी क्वेश्चन से, इफ अटैकर होल्ड्स योर रिस्ट बाय यूजिंग हिज बोथ द हैंड्स, दोनों हाथों से यदि आपकी कलाई को पकड़ लेता है, उस दशा में आप क्या करेंगे? सी, बचाव की स्थिति में तो दोनों हाथों के बीच से हाथ को इंसर्ट किया था और अपनी फिंगर टिप्स को पकड़ा था, लेकिन अब उल्टी बात, दूसरी बात, विपरीत बात कि
बाहर से अपने फिंगर टिप्स को पकड़ना है। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योर फिंगर टिप्स फ्रॉम द इनसाइड, यू हैव टू होल्ड योर ओन फिंगर टिप्स फ्रॉम आउटसाइड। देन पुल अपवर्ड बाय यूजिंग बोथ द हैंड्स, हल्का सा ऊपर पुल करना है। देन प्लेस योर पाम ऑन द रिस्ट, इतना तो आराम से कर सकते हैं। देन होल्ड, प्रेस, सी आपको लगेगा कैसे संभव, ही इज अंडर माई 100% कंट्रोल। ये लीवरेज प्रिंसिपल पर आधारित है। सी ये 100% कुछ नहीं, यहां देखिए इसका ये मेरे कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको लगेगा कैसे संभव, यस इट इज पॉसिबल। अब इसको स्लो मोशन में देख लीजिए। आइए आपने दोनों हाथों से पकड़ा है। इससे पिछली टेक्निक में छुड़वाने के लिए जिसका उपयोग किया था उसमें तो अंदर से इंसर्ट किया था, इसमें बाहर से पुल करना है, यहाँ प्लेस करना है। भाई इतना होना चाहिए, और यहाँ प्रेस जितना करेंगे उतना अच्छा है। और सी आई एम अप्लाइंग ओनली बाय यूजिंग माय वन फिंगर, सी वन फिंगर, और पूरे हाथ से ये ताकत लगाए तो देखिए, तो एल यू में जज, आप अनुमान लगा सकते हैं कि रिस्ट जॉइंट में कितना पेन होगा। तो छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और दर्द से कहराएगा। यदि प्रैक्टिकल सेशन फेस टू फेस होता तो इसका और अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता। सिंस आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन ऑन ऑनलाइन मोड, पहले बता चुका हूं, तो है तो थोड़ा जटिल रास्ता, जटिल कार्य है कि ऑनलाइन एक फिजिकल एक्टिविटी सिखाना, लेकिन फिर भी आई होप काफी हद तक आप समझ रहे होंगे। अभी तक हम टेक्निक्स की बात कर चुके हैं 4। प्रोसीड टू फिफ्थ टेक्निक, 5वीं टेक्निक की बात कोशिश करेंगे कम से कम 10 टेक्निक्स की तो आज बात कर लें, कम से कम 10 टेक्निक्स की। 5वीं टेक्निक, अभी तो केवल अपर पार्ट की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, लोअर पार्ट की तो टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे, और केवल लॉकिंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो इससे भी खतरनाक है, चॉपिंग टेक्निक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पहली 2 टेक्निक्स में एक हाथ को पकड़ा था सेम साइड के हैंड से, दूसरी अगली 2 टेक्निक्स में एक हाथ को पकड़ा था दोनों हाथों से। अब मान लीजिए एक हाथ को क्योंकि कोई भी अटैकर होगा तो रैंडमली अटैक करेगा ना, रैंडमली, जहां तो रैंडम अटैक में मान लीजिए उसका अटैक है कि अपोजिट हैंड, उसके अपोजिट हैंड में आपका हाथ चला गया, मान लीजिए सपोज, उस दशा में भी सेम टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी बात अभी की थी, वो दोनों हाथों में की थी, वही करना है इसमें एक हाथ से। ये और भी खतरनाक लगेगी, जब सी ये ही इज अंडर माय कंट्रोल, कुछ नहीं, जब तक ये हाथ में पकड़े रहूंगा ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 5 टेक्निक्स की बात कर चुके हैं। अगला टेक्निक नंबर 6, छठी टेक्निक की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, ये और भी डेंजरस है। इसमें तो एल्बो फ्रैक्चर होने की लगभग पूरी संभावना ही रहती है। कैसे, आपको 180 डिग्री टर्न लेना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सी एंड पुल अपवर्ड। इसको दूसरी डायरेक्शन में दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए मान लीजिए क्वेश्चन है, हमें एक स्टेप आगे लेते हुए 180 डिग्री टर्न करना है, लेकिन 180 डिग्री टर्न करने के साथ वी हैव टू पुल हिज हैंड अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना तो कर ही सकते हैं। हमने उसके हाथ को नहीं पकड़ा है, उसने हमारे हाथ को पकड़ा, हमारा हाथ जहां जाएगा उसका हाथ भी साथ साथ जाएगा, चाहे इतना जाए, डिपेंड करता है कि हम कितनी ताकत लगाते हैं, कम से कम इतना तो आएगा। सी, और यहां से नीचे ले जाना है, लेकिन उसको कंबाइन कर नीचे ले जाने के साथ साथ इस हाथ को यहां ले जाना है। सी, आप देख सकते हैं यहीं से अगर मैं फोर्स लगाता हूं यहां, तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अगेन सी इन स्लो मोशन, और इसी को फुल मोशन में देखिए। अगर मैं हाथ को पीछे न हटाऊं और यहीं से ले जाऊं इसको, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगली टेक्निक, 6 टेक्निक्स की बात कर चुके हैं। We have discussed about 6 different techniques, जिनमें से 2 ऐसी थी जो सेम साइड के हाथ पकड़ कलाई पकड़ी होती, 2 ऐसी थी जिसमें दोनों हाथों से आपकी कलाई पकड़ी होती, एक ऐसी थी क्रॉस वे में अपोजिट साइड से आपकी कलाई को, अपोजिट हैंड से आपकी कलाई को पकड़ा गया। तो नेक्स्ट
कलाई की कहानी खत्म। तो हमेशा तो कलाई भी पकड़ेगा नहीं, तो रैंडम अटैक है आगे। एज आई एक्सप्लेन अर्लियर, पहले मैं बता चुका हूं, तो एक रैंडम अटैक है। तो मान लीजिए कि अटैक करने कॉलर को पकड़ा। मान लीजिए कॉलर पकड़ते हैं ना, कॉलर पकड़ सकते हैं, बाल पकड़ सकते हैं, कॉलर पकड़ सकते हैं, कंधा पकड़ सकते हैं, पीठ पकड़ सकते हैं। मान लीजिए कॉलर को पकड़ा, तो आप क्या करेंगे? इन अवर सीक्वेंस, आज के हमारे क्रम में यह 7वीं टेक्निक है। आज के क्रम में यह 7वीं टेक्निक है। सी, इन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ा, होल्ड द कॉलर, कॉलर पकड़ा। अभी तो फुल टेक्निक का डेमोंस्ट्रेशन देखिए, उसके इफेक्ट को स्लो मोशन में देखेंगे। सी, हमें अपने फिंगर टिप्स को फिस्ट में इंसर्ट करने का प्रयास करना है, चाहे वो फिंगर टिप्स कितनी भी हो, इंसर्ट करना है, दूसरे हाथ से प्रेस करना है और केवल टर्न करना है, कुछ नहीं करना, केवल टर्न करना है, सीधा इधर। ही इज अंडर माय कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन योर चेस्ट एंड योर हेड। जितना प्रेस करके करोगे, इसमें मैं हाथों की ताकत नहीं लगा रहा, इसमें जो ट्रंक है पूरे बॉडी वेट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। ये पूरा बॉडी जो मूव कर रही है उसकी ताकत लग रही है। सी इन स्लो मोशन, हल्का सा फिंगर टिप्स को इंसर्ट करना है, प्रेस करना है और केवल टर्न करना है, कुछ नहीं करना है, टर्न करना है और टर्न करते रहिए, घूमते रहिए, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। चलिए, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 7 डिफरेंट टेक्निक्स। अभी तक की चर्चा में हम आत्मरक्षा के लिए विशेषकर छात्राओं द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है या लाई जाती है 7 विभिन्न टेक्निक्स की, कौशलों की चर्चा कर चुके हैं। Now I will proceed to next, that is 8th in today's serial number. यही टेक्निक है। दूसरा अटैकर है, दूसरा कॉन्टेस्टेंट है, वो चतुर प्रकृति का है, उसको पता है, उसने देखा कि उसने कॉलर को होल्ड किया, उसको पता है कि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, तो उसने छोड़ दिया और ये पोजीशन आ गई। तो आप वो जो रिस्ट लॉक लगा रहे थे उसमें फेल हो गया। वी कैन नॉट अप्लाई। यह रिस्ट लॉक तो तभी तक संभव है जितना वो टाइटली होल्ड करेगा आपके कॉलर को, उतना इफेक्टिव होगा। लेकिन क्योंकि उसने आपका कॉलर छोड़ दिया है, इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द टेक्निक। उसमें हम नहीं लगा पाएंगे। उस दशा में वी विल मूव टू अनदर टेक्निक, हम दूसरी टेक्निक को लगाएंगे। अब प्रश्न उठा कि वो दूसरी टेक्निक कौन सी होगी? पहली टेक्निक थी प्रेस किया था, ये मूव कर रहे थे। दूसरी टेक्निक छोड़ दिया, कुछ नहीं, अब अपने आर्म पिट में इसको ले आइए, आर्म पिट में ले आइए बस और कस के दबाए रखिए और ये इसको ऊपर देखिएगा, इसको ऊपर उठाएंगे। ये ऐसी टेक्निक है। अब इस दशा में कितने ताकतवर हो, जब तक आप इसका कलाई, इसकी पाम आपके हाथ में है और आर्म पिट में है और ये लॉक की पोजीशन में है, एल्बो लॉक लग रहा है, उस दशा में वो आपके नियंत्रण में रहेगा और उठाएंगे, देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बड़ा पेनफुल होगा। तो कितनी टेक्निक्स कर चुके हैं? 8। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 8 डिफरेंट टेक्निक्स। तो जैसी चर्चा हुई थी 8 कर चुके हैं, 2, 3, 4 टेक्निक्स की और चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जितनी भी टेक्निक्स हैं, या तो आपकी कलाई को पकड़ा गया एक हाथ से, दोनों हाथों से, या आपके कॉलर को पकड़ा गया। अब दूसरी बात करते हैं, यदि कोई कॉन्टेस्टेंट, कोई भी अटैकर, कोई भी आक्रमणकर्ता यदि आपके बालों को पकड़ता है तो उस दशा में क्या करेंगे? कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बैजू जी कोई कुछ कह रहे हैं क्या? बात कर रहे थे, इफ एनी अटैकर होल्ड्स योर हेयर्स, यदि किसी बच्ची के बालों को कोई पकड़ता है उस दशा में क्या करें? और बाल कैसे? या तो आमतौर पर रैंडमली कोई पकड़ेगा तो बाल या तो सामने से पकड़ेगा, या दूसरी दशा हो सकती है या बाल पीछे से पकड़ेगा। दोनों ही जगहों से टेक्निक है। तो दिस इज
सीरियल नंबर 9 एंड 10 आज के सीरियल में जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण है, इसमें नौवीं टेक्निक वो है, 9th टेक्निक इज इफ द अटैकर होल्ड्स योर हेयर्स फ्रॉम योर फ्रंट साइड। 10th टेक्निक होगी इफ द अटैकर होल्ड्स योर हेयर्स फ्रॉम योर बैक साइड। दोनों दिशाओं में पहली की बात करते हैं, यदि आक्रमणकर्ता ने सामने से आपके बालों को पकड़ा, उस दशा में कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, अपनी पाम को प्लेस करना अपोनेंट के हैंड पर, दूसरी पाम को अपने खुद की हाथ पर रख लेना। प्लीज कीप योर माइंड देयर शुड नॉट बी एनी गैप इन बिटवीन योर हेड एंड अपोनेंट्स हैंड। जितना प्रेस कसके करेंगे, जितनी भी ताकत हो, अगर प्रेस जितना करेंगे उतना इफेक्टिव है। अगर गैप उत्पन्न हो गया उस दशा में प्रभावशाली नहीं होगी। सी, और यहां से कुछ नहीं करना है, सामने झुक जाना, मुड़ जाना। सी, इसका और इफेक्ट देख सकते हैं, सीधा इफेक्ट, जितना नीचे जाएंगे उतना ही यह प्रभावशाली रहेगा। अगली टेक्निक, टेक्निक नंबर 10, 10वीं टेक्निक, यदि कोई भी आपके बालों को पीछे से पकड़ता है, इफ द अटैकर होल्ड्स योर हेयर्स फ्रॉम योर बैक साइड, अचानक पीछे से पकड़ता है, मान लीजिए आपके सामने है, सी, कुछ नहीं करना, उसी जगह से हाथ को प्रेस करना है, दूसरे प्रेस करना है और गर्दन को घुमाते हुए 180 डिग्री टर्न कर देना और आगे को लिफ्ट कर देना। सी, लेकिन टाइटली होल्ड करना। सी, ही इज अंडर माय कंट्रोल, वो मेरे नियंत्रण में है। कितने टेक्निक्स की बात कर चुके हैं? 10 टेक्निक। सी, तो आज के प्रस्तुतिकरण में 2 टेक्निक की केवल और बात कर लेते हैं। Since in the limited duration of time it is not possible to explain all techniques, इसके लिए तो घंटे नहीं कई दिन चाहिए। और एक सिद्धांत सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि एक ही टेक्निक को एक दिन सीखने से हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाए, संभव नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में आप सबने सुना होगा, लॉ ऑफ रिपीटिशन। यदि किसी टेक्निक में परफेक्शन लाना है, वी हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, 1 2 3 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स। तो एक रिदम हम पा लेंगे, we will get a rhythm, जिसके कारण से वो एक टेक्निक को we can apply very effectively। टेक्निक नंबर 11 टेक्निक की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की, कल हम सीमित थे कलाई तक और कॉलर तक और बालों तक। अब बात करते हैं कि अटैक भी हुआ। एक मेरी बात से आप सहमत होंगे, कोई भी अटैकर अटैक करता है, चाहे खाली हाथ हो, बेयर हैंड्स हो, या कुछ हाथ में इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है। यहीं से हुक बना लेना, थोड़ा सा, बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं, हल्का सा हुक बनाना है कि बहुत अधिक भी नहीं, बस थोड़ा सा मामूली। और यहां पर पाम को एल्बो पे प्लेस करना, क्यों टर्न करना है, टर्न करना है, तो ये पोजीशन आपके पास आएगी। दिस विल बी योर पोजीशन, यह पोजीशन आपके पास आएगी एंड ही विल बी अंडर योर कंट्रोल। उसके बाद जिस भी तरह से बचाव करना, चाहे भागना है या अटैक करना है, क्या करना है, पंचिंग टेक्निक्स। क्योंकि आज पहला सेशन है, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चॉकिंग टेक्निक्स तो ऐसी है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ चॉकिंग टेक्निक्स वन मे बिकम अनकॉन्शियस, कोई भी व्यक्ति विशेष अनकॉन्शियस हो जाता है। आज के प्रस्तुतिकरण की लास्ट टेक्निक मीन्स 12वां क्रम, सीरियल नंबर 12। कैसे अटैक? वही है, ऊपर से अटैक किया, सेम अटैक है। और हमने क्या किया था, एल्बो लॉक लगाई थी, नहीं लग पाया एल्बो लॉक। दूसरा कारण क्या हो सकता है, किया और हल्का सा उसी की तरफ बढ़ गए और बाहर से हाथ को इंसर्ट करते हुए अपन ही कलाई को पकड़ लिया, बस। तो वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना पेन होगा, और वो ही विल फॉल डाउन, वो नीचे गिरेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो I tried my level best to present some self defense techniques in front of you। मैं उन सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना
देखा मेरे प्रेजेंटेशन को, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरे सीनियर, मेरे गुरु समान वत्सराज सर का, जिनसे मैं बहुत सीखता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट के मेरे सीनियर हैं, और जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट से हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसमें प्रत्येक सीनियर एक शिक्षक का दर्जा रखता है। सो आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू माय सीनियर। और दूसरी तरफ I also express my sincere thanks to my junior of the same institute, LNIP, Lakshmi National Institute of Physical Education, Dr. Beju। तो दोनों को मैं एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और लखनऊ कृष्ण कॉलेज का सौभाग्य है कि डॉक्टर बैजू, जिनका चयन लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में हो गया था, जो कि एक देश का जाना माना इंस्टीट्यूट है, वहां से अपनी त्याग पत्र देकर, जो कि कृष्ण कॉलेज के प्रति इतना लगाव था। आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू द ऑर्गेनाइजर्स प्लीज। थैंक यू। Thank you, Dr. Chaudhary. I just wanted to request you that if my students think they want to raise one or two questions, let them raise that they can answer them if they want. श्योर सर, श्योर। Dr. Baju? Yes, sir. Sure, तो बोल रहे हैं। देख रहे हैं। कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अपना माइक देख अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो, आप अनम्यूट करो। फाइव थर्टी में बैजू जी कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक था। अच्छा, राइट साइड से हो जाए, लेफ्ट साइड से क्या स्ट्रेट पंच भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के सीक्वेंस की कौन सी टेक्निक है? 11th। यदि अटैक किया सामने से, तो हमेशा ब्लॉकिंग टेक्निक्स के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मान लीजिए स्लो मोशन में करेंगे मैं, क्योंकि हमें तो सीखना है ना, नहीं स्लो मोशन में करने के लिए कह रहा हूं अटैक कीजिए सामने से।
तो हमारा हाथ अपने आप प्रकृति ने हमारे रिफ्लेक्शंस ऐसे बनाए हैं जैसे ऊपर से अटैक होगा हमारे हाथों से बचाव करते हैं, नेचुरल है ना। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो किसी पार्ट पर कुछ हिट हो वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज पर हो। अगर बोन पर हिट हुआ तो बोन फ्रैक्चर होगा, और सॉफ्ट टिश्यूज पर आमतौर पर हम कोशिश करते हैं तो हम सॉफ्ट टिश्यू पर हो, मींस सॉफ्ट टिश्यू पर हिट होगा तो उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान रहे जिस तरफ से अटैक हो रहा है कोशिश की जाए ऐसे रिफ्लेक्सेस हम डेवलप करें कि अपोजिट हैंड हमेशा होता है, सेम साइड का हैंड अपोजिट हैंड होते हैं, सी ठीक। लेकिन अटैक कैसे करेंगे, सी लॉक टेक्नोलॉजी स्लो मोशन में देखिए, यहीं से हुक बना लेना, थोड़ा सा, बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं, हल्का सा हुक बनाना है कि बहुत अधिक की नहीं, बस थोड़ा सा मामूली, और यहां पर पाम को एल्बो पे प्लेस करना, क्यों टर्न करना है, तो ये पोजीशन आपके पास आएगी, दिस विल बी योर पोजीशन, यह पोजीशन आपके पास आएगी एंड ही विल बी अंडर योर कंट्रोल। उसके बाद जिस भी तरह से बचाव करना, चाहे भागना है या अटैक करना है, क्या करना है, पंचिंग टेक्निक्स, क्योंकि आज पहला सेशन है, हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चॉकिंग टेक्निक्स तो ऐसी हैं, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ चॉकिंग टेक्निक्स वन मे बिकम अनकॉन्शियस, कोई भी व्यक्ति विशेष अनकॉन्शियस हो जाता है। आज के प्रस्तुतिकरण की लास्ट टेक्निक मींस बालवक्रम, सीरियल नंबर 12। कैसे अटैक वही है, ऊपर से अटैक किया, सेम अटैक है, और हमने क्या किया था, एल्बो लॉक लगाई थी, नहीं लग पाया एल्बो लॉक, दूसरा कारण क्या हो सकता है, किया और हल्का सा उसी की तरफ बढ़ गए। छात्राओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ध्यान पूर्वक सुना, देखा मेरे प्रेजेंटेशन को, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरे सीनियर, मेरे गुरु समान वत्सराज सर का, जिनसे मैं बहुत सीखता हूं, मेरे इंस्टीट्यूट के मेरे सीनियर रहे हैं, और जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट से हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसमें प्रत्येक सीनियर एक शिक्षक का दर्जा रखता है। सो आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू माय सीनियर, और दूसरी तरफ आई ऑल्सो एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू माय जूनियर ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डॉक्टर बैजू। तो दोनों को मैं एक बार फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का सौभाग्य है कि डॉक्टर